Welcome to another lecture. In this lecture, we will discuss low pass equivalent of linear band pass system and response of band pass system to a band pass signal. And also, we'll discuss representation of white noise. So, let us start with the equivalent low pass system representation of linear band pass systems. A linear filter a system, as we know that a linear system or system may be described or characterized by its impulse response ht or by its frequency response capital H of f. So this is Fourier transform pair between impulse response and frequency response. This is H of t is the impulse response. Okay, and this is frequency response of a LTI system. Recall conjugate symmetry property of real signal x of t. Suppose x of t has a Fourier transform capital X of f. If I will take conjugacy property, so Fourier transform of this conjugate of x of t will be the conjugate of x of minus f. Okay, signal if x of t is real, it means x of t equal to conjugate of x of t बराबर होगा. Okay, so if this is equal ये बराबर होगा तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी x of f equal to x conjugate of f. This is for real signal. This is called conjugate symmetry property of real signal. Okay, it is a बैंड पास सिस्टम तो उसका h of t जो होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स इज रियल सिग्नल. सो फ्रीक्वेंसी response will satisfy the conjugate symmetry property. H of f will be the conjugate of h of f equal to the conjugate of h of minus f. This is conjugate symmetry property of the real signal. If the impulse response of a linear system is real, so its frequency response will satisfy conjugate symmetry property. Okay, this is a magnitude spectra of the frequency response of a linear band pass system. Okay, band pass system है क्योंकि ये spectra of R situated around FC. Okay, FC is very large than 0. So अब क्या होगा कि मान लीजिए एक लो बैंड पास सिस्टम है. ओके, this is HL of f. Okay, this is the frequency response of a low pass linear system. If I will shift this spectra, right shift by FC, I will get this portion of this spectra. Okay, if I will shift this spectra left shift by FC, I will get this spectra. So let us define. So
HL f of minus fc will equal to h of f if f greater than 0, क्योंकि ये जो एच एल ऑफ एफ यदि इसको शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा एच एल एफ माइनस एफ सी, ओके। और ये एच एफ एफ ग्रेटर देन 0 के वाले पोर्शन के बराबर, एच ऑफ एफ के बराबर हो, एंड एफ ऑफ एस लेस देन 0, दिस विल बी दिस, ओके। सिमिलरली यदि इसी को आपने पहले, दिस इज यू हैव एच एफ माइनस एफ सी, ओके, आपने शिफ्ट पहले कर दिया, अब इसको स्केलिंग या रिफ्लेक्शन करना है, स्केलिंग बाय -1 या रिफ्लेक्शन, सो एच एल माइनस एफ सी, ओके। अब क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एच ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेटर देन 0, 0 माइनस एफ लेस देन 0, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एच एल माइनस एफ, ओके, एंड ये multiply minus both sides, so it will become f less than 0, okay, 0, this is f greater than 0, इस टाइप का बन गया। अब conjugate ले लो both sides, so I will get this form, okay। So using equation 2, so this is equivalent to this, इसमें हमने फेज नहीं दिखाया है, ओके, हमने मैग्नीट्यूड दिखाया, फेज इग्नोर किया है, ओके, ओके। सो इफ आई विल ऐड बोथ using 2, if I'll add 3 and 4, so I will get h of f for this, using this। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको रिलेशन पता, लो पास इक्विवेलेंट ऑफ बैंड पास सिग्नल इज एस ऑफ एफ इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाई फैक्टर हाफ मल्टीप्लाई विद दिस टू क्वांटिटीज एस एल ऑफ एफ माइनस एफ सी, एस एल एफ माइनस एफ सी कॉन्जुगेट, ओके। अब क्या है कि ये तो सिग्नल का स्पेक्ट्रा है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, इसमें दोनों बोथ आर सिमिलर, बट व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज 1/2 फैक्टर अवेलेबल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन लो पास इक्विवेलेंट ऑफ बैंड पास सिग्नल, जबकि यही रिलेशन है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लो पास इक्विवेलेंट system, linear system with the of linear band pass system, okay। If I will take inverse Fourier transform of equation 5, so I will get this one, ht exponential of j pi fct hl of t conjugate एक्सपोनेंशियल माइनस जे पाई एफ सी टी, दिस ये क्या है, ये टोटल क्वांटिटी को लिख सकते हैं एच एल ऑफ टी एक्सपोनेंशियल जे पाई एफ सी टी, यहाँ पे 2 पाई एफ सी टी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी 2 पाई एफ सी टी होना चाहिए, ओके, देयर इज करेक्शन। सो इसका कॉन्जुगेट आप लोगे तो ये मिलेगा
x of t plus conjugate of xt will be the twice of real part of this x of t. ये चीज आप यहाँ पे हमने लिख दिया है. ओके, एक्सपोनेंशियल j 2 पाई एफ सी टी होगा, एफ सी इंटू टी. In general, impulse response of equivalent low pass system is a complex value. Okay, so let us find the relation between a responses of band pass system to the response of low pass system. Suppose this is a band pass system, this is input, this is a response, that is output, and this is impulse function of band pass system. अब इसका इक्विवेलेंट लो पास सिस्टम है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच एल ऑफ टी, फ्रीक्वेंसी इम्पल्स रिस्पॉन्स. इनपुट इज एस एल ऑफ टी, आउटपुट इज आर एल ऑफ टी. अब क्या होगा, इनपुट रिलेशंस एस ऑफ टी इज रियल पार्ट ऑफ एस एल ऑफ टी एक्सपोनेंशियल जे 2 पाई एफ सी होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है हर जगह 2 पाई एफ सी. ओके, यहाँ पे ये 2 फैक्टर होगा, एच ऑफ टी इज रियल पार्ट ऑफ एच एल ऑफ टी एक्सपोनेंशियल जे 2 पाई एफ सी टी. ओके, रिस्पॉन्स आर ऑफ टी विल बी रियल पार्ट ऑफ आर एल ऑफ टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ जे 2 पाई एफ सी टी. सो टाइम डोमेन में फॉर बैंड आर टी विल बी द कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी विद एच ऑफ टी. ओके, फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैपिटल एस ऑफ एफ विद एच ऑफ एफ. एस ऑफ एफ का ये रिलेशन है. ओके, एच ऑफ एफ का इक्विवेलेंट लो पास रिलेशन ये है. मल्टीप्लाई दिस, अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो रिमेनिंग कुछ पोर्शंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि आपने एस एल एफ माइनस एफ सी इंटू एच एल एफ माइनस एफ सी एक टर्म में, और टर्म आएगा एक, मान लीजिए आपने इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एस एल एफ माइनस एफ सी इंटू एच एल कॉन्जुगेट एफ माइनस एफ सी. ये जो देखेंगे ये पोर्शन क्या होगा आपका, इस साइड का होगा सिग्नल का, जो भी होगा ओरिजिन के इस साइड का, और ये जो पोर्शन है मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा का ये है. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा. इसी तरह और भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 टर्म बचेंगे. ओके, दिस कैन बी रिटन इज इन टर्म्स ऑफ इफ आर एल ऑफ एफ, उसी तरह इसका भी एल टी आई सिस्टम है, तो आर एल ऑफ टी विल बी कन्वोल्यूशन ऑफ एच एल ऑफ टी इंटू एस एल ऑफ टी. फोरियर ट्रांसफॉर्म आर एल कैपिटल आर सब्सक्रिप्ट एल ऑफ एफ विल बी देयर, एच एल ऑफ एफ इंटू एस एल ऑफ एफ. ये है, तो इससे ये चीज लिखी जा सकती है, ये वाला लिखा जा सकता है, और इससे ये वाला लिखा जा सकता है. दिस इज हाफ. ओके, सो दिस इज मैग्नीट्यूड रिस्पेक्ट ऑफ बैंड पास सिस्टम, मैग्नीट्यूड रिस्पेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ बैंड पास सिस्टम. ओके, एक एग्जांपल के लिए लिया है, तो अब देखोगे मल्टीप्लिकेशन का क्या फर्क पड़ेगा. सो नाउ वी हैव this relation between response of a band pass system and equivalent a linear band pass system and its equivalent low pass system. Okay, this relation allow us to ignore any frequency translation encounter in the modulation of a signal for purpose of matching its spectral content to frequency allocation of a particular channel. ये रिलेशन बताता है, और कि आप जो भी लीनियर फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बाय माइनस एफ सी मॉड्यूलेशन में,
तो उस मैचिंग इस स्पेक्ट्रल कंटेंट टू फ्रीक्वेंसी एलोकेशन ऑफ पार्टिकुलर चैनल की पार्टिकुलर माई चैनल में भी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंटेंट होंगे फ्रॉम एफ सी माइनस बी सी, एफ सी प्लस बी सी। ओके, इसके फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन को allow us ignore any linear frequency translation encountered in the modulation of a signal for purpose of matching its spectral content to frequency allocation of the particular channel. Thus, for mathematical convenience, we can deal only with the transmission of equivalent low pass signal through the equivalent low pass system या channel. तो इसकी एनालिसिस में ये रिलेशन बताता है, इसकी एनालिसिस जो हम बैंड पास में कर रहे हैं वो मैथमेटिकली कन्वीनियंटली वी कैन डू इन इक्विवेलेंट लो पास सिग्नल विद द इक्विवेलेंट लो पास सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन हो रहा है और एक फैक्टर हाफ आ रहा है, दैट कैन बी इजीली हैंडल। सो नाउ यू फाइंड द representation of white noise. White noise is a random process. A random process is collection of waveforms, or it is defined as a flat या constant power spectral density over entire frequency range. White noise का this is a PST, power spectral density, S n of f. Don't confuse, it is not Fourier transform. It is Fourier transform of autocorrelation. इंटायर ये है पीएसडी, कांस्टेंट है n/2। इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है, इस नॉइज की बैंडविड्थ इनफाइनाइट है। दिस टाइप ऑफ नॉइज कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वाड्रेचर कंपोनेंट। जैसे कि वाइट नॉइज बैंड पास सिग्नल हम जो मॉडलिंग जो मैपिंग करते हैं उसमें बैंड पास सिग्नल ले लें हम, as a sample function of a random process। ओके, तो इसकी बैंडविड्थ है इनफाइनाइट। सो यदि एक सिग्नल है उसका पीएसडी कांस्टेंट है और बैंडविड्थ इनफाइनाइट है तो उसका पावर इनफाइनाइट होगा उस सिग्नल का, मतलब उस रैंडम प्रोसेस का। एज रिजल्ट ऑफ दिस वाइड बैंड कैरेक्टरिस्टिक, बैंड इसकी बहुत इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, ये वाइड बैंड कैरेक्टरिस्टिक है सिग्नल की। ओके, सो इस टाइप के सिग्नल को हम क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स में नहीं ब्रेक कर सकते। ओके, तो दिस टाइप ऑफ वाइड नॉइज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट लो पास। क्वाड्रेचर कंपोनेंट में रिप्रेजेंट ना कर पाने का मतलब है कि इक्विवेलेंट लो पास नहीं हम लिख सकते इस सिग्नल का। रैंडम प्रोसेस इज ए कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स। ओके, सो आप रिकॉल करें कि डबल साइड सप्रेस करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज क्या होता है, एक बार हम रिकॉल करते हैं। ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये मैसेज है कैरियर से मल्टीप्लाई होके एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक्स ऑफ टी होता है, उसमें नॉइज ऐड होगा चैनल में, एंड दिस पास थ्रू ए बैंड पास फिल्टर बिफोर द डीमॉड्यूलेशन। ओके, बैंड पास फिल्टर ओमेगा सी प्लस माइनस 2 पाई डब्ल्यू। अब ये जो वाई ऑफ टी जो बैंड पास फिल्टर से पास होके जाता है ये डीमॉड्यूलेटर को जाता है, उसके बाद ये डीमॉड्यूलेशन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेशन के लिए कैरियर से मल्टीप्लाई करते हैं और बेस बैंड लो पास फिल्टर से पास करके वाई नॉट टी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जो यहाँ पे नॉइज वाइड बैंड कैरेक्टरिस्टिक की थी वो बैंड पास फिल्टर से पास होने के कारण वो बैंड पास नॉइज बन जाएगी। तो बैंड पास नॉइज मीन्स इट्स सैंपल फंक्शन और बैंड पास सिग्नल्स। ओके, ऑफ फाइनाइट बैंडविड्थ they can be represented in terms of quadrature components. Okay, so modulated signal x of t is a band pass signal center at omega c with bandwidth 2b,
channel noise assumed to be additive, N of t. Channel and filter are assumed to be ideal. So एक्चुअली का जो वाइट नॉइज हम कंसीडर करते हैं प्रॉब्लम में, इन प्रॉब्लम कंसर्न विद द डीमॉड्यूलेशन ऑफ नैरो बैंड सिग्नल इन नॉइज, x of t is a narrow band signal. It is mathematically convenient to model additive noise process as a white and to resolve the noise in terms of quadrature. Okay, this can be accomplished by postulating that signal and noise at the receiver terminal have passed through ideal band pass filter having a pass band that include the spectrum of signal but it is much wider. Okay, सच ए फिल्टर इंट्रोड्यूस नेग्लिजिबल, जिसे मान लीजिए बैंड पास फिल्टर कुछ आपका एटेन्यूएशन इंट्रोड्यूस करता है. सो इफ एनी डिस्टॉर्शन ऑन सिग्नल बट डज एलिमिनेट द नॉइज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटसाइड द पास बैंड, क्योंकि पास बैंड के आउटसाइड जो भी फ्रीक्वेंसी नॉइज के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे उनको एलिमिनेट कर देगा, रिमूव कर देगा. And noise resulting from passing the white noise process through a spectrally flat band pass filter that is termed as a band pass white noise and has a power spectral density depicted in figures. Okay, हम बता रहे हैं. मान लीजिए ये एक आपका बैंड पास फिल्टर है, उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ये बैंड पास फिल्टर. ओके, ये है पीएचडी ऑफ नॉइज एन ऑफ टी. ओके, अब इसको बैंड पास फिल्टर से जैसे कि आपका ये बैंड पास फिल्टर है, इसके थ्रू नॉइज पास होगी. ओके, ओके, तो ये एस एन ऑफ एफ. ओके, ये जो बैंड पास एन ऑफ टी, दिस इज बैंड पास वाइट नॉइज. ओके, तो बी मान लीजिए सेम डैश मान लीजिए एन डैश. ओके, दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ एन डैश ऑफ एफ. ओके, तो क्या होगा कि इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दिस इज दिस. इसके आउटपुट में बैंड पास फिल्टर की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है, दिस इज एन डैश ऑफ एफ. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इसके स्क्वायर एच ऑफ एफ के एब्सोल्यूट स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाती है. ओके, इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी ऐसे ही रहेगा शेप. इसका क्या करेगा, ये पोर्शन आपका काट देगा यहाँ से, इस साइड का यहाँ पोर्शन काट देगा अराउंड द एफ सी, और ये सारे पार्ट जीरो हो जाएंगे, आउटसाइड सप्रेस हो जाएंगे. तो ये इस टाइप का एक आपको पीएचडी ऑफ नॉइज एन ऑफ टी. इक्विवेलेंट लो पास नॉइज हैज ए पीएचडी. ओके, यहाँ पे रिलेशन है, इसके थ्रू निकालोगे तो आपका ये इक्विवेलेंट नॉइज बैंड पास फिल्टर की पीएचडी मिल जाएगी आपकी इस तरह. इक्विवेलेंट लो पास. दिस इज p/2, दिस इज b/2. ओके, W है, ये थोड़ा गड़बड़ है. ये ऐसे आप इस रिलेशन का यूज करके आप पीएचडी ऑब्टेन करते हैं. ओके, सो एन नॉट इंटू ये बैंडविड्थ बी है बैंड पास फिल्टर की,
so it will be 2b. ओके, तो थोड़ा इन सब में थोड़ा करेक्शन होगा। अब इसी का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके आप ऑटो करेक्शन निकाल लोगे, और ये आपका मिलेगा, यदि b/2 होगा तो शायद ओके, यदि इसको कर लोगे b/2, इसको कर लोगे b/2, इसको भी कर लोगे, दिस इज नॉट, यहाँ बी सी की जगह बी होना चाहिए, basically b/2, b/2, this is b/2, b/2, ठीक है, b/2, ओके। मान लीजिए इसको एक बार शिफ्ट किया, ओके, आप इसको शिफ्ट करोगे, आप इसको ओपन करना चाहते हो, यदि ये है, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, फिर राइट साइड F/Fc, तो आपको ये मिल जाएगा आपका ये स्पेक्ट्रम, ओके। और हाफ से स्केलिंग हो रहा है तो n0 n/, ये हो जाएगा, सो इट विल बी b/2, ओके, दिस इज करेक्ट। उसके बाद इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो आपको ये मिलेगा, ये सिंक फंक्शन डिफाइन है। लिमिटिंग फॉर्म ऑफ दिस लो पास इक्विवेलेंट ऑफ दिस नॉइज as b approaching infinity, so n0 in del tau, ओके। जैसे b n0 b इंटू सिंक को पाई साइन पाई टाउ डिवाइडेड बाई पाई b tau, so b is cancel, okay, so bandwidth b is approaching, आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आप देखो कि इसका ये n0 इंटू डेल्टा मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करोगे तो। PSD for white noise and band pass white noise is symmetric about f is equal to 0 origin का, इस कारण auto correlation cross correlation between in phase and quadrature components should be 0 for all tau. Therefore auto correlation of NL of tau is equal to the auto correlation of x, Rx of tau will be equal to R सबस्क्रिप्ट y ऑफ टाउ। इसका मतलब है कि जो ऑटो कोरिलेशन नॉइज लो पास इक्विवेलेंट का ऑटो कोरिलेशन होगा वो, और क्वाड्रेचर कंपोनेंट का ऑटो कोरिलेशन होगा, x एंड y और क्वाड्रेचर कंपोनेंट all are equal, okay, so that is the quadrature component x y t uncorrelated for all time shift tau, and auto correlation function of NL of t and y x of t and y of t are equal. So this is about the white representation of white noise, क्योंकि हम जनरली एक बैंड पास फिल्टर से पास करते हैं उसके कारण वो बैंड पास नॉइज बन जाता है, ओके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इस वाइट नॉइज के लिए इस बुक के में वाइट नॉइज आप पढ़ सकते हैं, और उसके पहले वाले 2 सेक्शन के लिए ये वाला बुक्स इस बुक में आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।